Hello, good evening. Now, in the polymer, we have talked about so many types of the elastomers, and we shall talk also about the different type of the polymers. So, actually, all polymers are sub-classified as a plastic, as elastomer, as a fiber. But the major problem of today is the non-degradable form of the most of the polymers. हम ये जानते हैं कि बहुत सारे पॉलीमर हमारे सराउंडिंग में हैं। इसमें मोस्टली जो सिंथेटिक पॉलीमर हमें प्राप्त होता है, प्लास्टिक जिसे हम कहते हैं, ये नॉन डिग्रेडेबल है। तो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर अगर इसी प्रकार से हमारे सराउंडिंग में रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। So it was thought that we should prepare biodegradable polymers. So lot of work, scientific work are done, and scientists are also trying to have good quality and durable biodegradable polymer. So actually today we shall discuss about the biodegradable polymer. So biodegradable polymer means we can say it can be classified as natural biodegradable polymer. Natural biodegradable polymers. And second is synthetic biodegradable polymer. Natural biodegradable polymer, there are so many natural biodegradable polymers. Already we know that starch, the very most simple, and everybody knows about the starch. So starch is polymeric form of the carbohydrate. So it can very easily break down into simple form. Degradation means the big length of the polymer is break down into simple component. That is the degradation. So starch, as we know that if we take starch, it is break down into simple component in our stomach and intestine. It is easily digested and we get heat in the body.
So starch is one of the natural biodegradable polymer. Similarly, cellulose. Cellulose आप जानते हैं छाल. So cellulose is also a polymeric form of the carbohydrate. So cellulose can also break down into simple or a small unit. And similarly, प्रोटीन, हम प्रोटीन भी खाते हैं. प्रोटीन है क्या? पॉलीमर है. जैसे एक सिंपल प्रोटीन का नाम हम आपको बता रहे हैं, अमीनो एसिड, जिसको सबसे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन है. तो ग्लाइसिन पॉलीमराइज करती है तो एक प्रोटीन बनता है. बहुत सारी जो है अमीनो एसिड ये पॉलीमर बनाती हैं. पॉलीमराइज कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीमर बनता है. तो प्रोटीन इज अनदर टाइप ऑफ द नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. न्यूक्लिक एसिड, आपने नाम सुना होगा न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए, डीएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. तो मोस्ट कॉमन नेम इज द आरएनए एंड डीएनए. It is also a polymeric form. So it is also naturally biodegradable polymer. So all these are the examples of the natural biodegradable polymers. So here, this is the natural polymer, biodegradable polymer. You can say starch, protein, cellulose, nucleic acid, like RNA, and DNA. So these are the natural biodegradable polymers. Now in this case, this is the synthetic biodegradable polymers. Synthetic. हम बनाते हैं बहुत सारे पॉलीमर, मैन मेड हैं, जिनको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं. तो सिंथेटिक पॉलीमर में बहुत सारे कॉमन पॉलीमर आप जानते भी हैं, जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड, PNA, पॉलीलैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा तो ये पॉलीमर बनाएगा. ये बायोडिग्रेडेबल है पॉलीलैक्टिक एसिड. PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है, बट इट इज बायोडिग्रेडेबल. Similarly, another biodegradable polymer is PHBV. PHBV, valeric acid, beta valeric acid, PHBV. So we shall discuss about how these polymers can be synthesized, what are the
तो बात ये कर रहे थे कि polylactic acid. So let us see about the polylactic acid. So polylactic acid is one of the synthetic biodegradable polymer. Polylactic acid, synthetic bio polylactic acid. So this polylactic acid can be synthesized by the condensation polymerization. This is the OH, C, CH3, H, C double OH. This is the lactic acid. Lactic acid. This lactic acid polymerizes polymerization. We shall get polymer of this type. O, suppose N. This is the monomer. You can say monomer. Monomer. So it polymerizes, giving C, H, CH3, C, double bond O, like this. This is the polylactic acid. Polylactic acid. This polylactic acid, it is biodegradable. You can degrade it aerobic and non-aerobic. We can discuss the mechanism of the biodegradation later. So this lactic acid is biodegradable. So we shall use this lactic acid in different ways where biodegradation can be utilized. हम वेस्ट जो फेंकेंगे वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं रहेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद सिंपल कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा, जो कि आप देखते हैं कि प्लास्टिक है या बहुत सारे ऐसे नायलॉन हैं, अन्य प्रकार के जो पॉलीमर आप देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, वैसा इसका बिहेवियर नहीं है। जैसे इसके इस्तेमाल में आप क्या करते हैं कि पहले हम लोग कप, प्लास्टिक का कप यूज करते थे जो कि इस्तेमाल किया यूज एंड थ्रो में, वो पड़ा रहता था, मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए कहता है यूजेज। यूजेज इसका यूज कहाँ करते हैं? नंबर 1, टू प्रिपेयर कप। कप बनाने में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो here this polylactic acid, it can be used to prepare cup, टी कप, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का कप आप बना सकते हो या बनता है।
लेकिन लैक्टिक एसिड का जो बनेगा उसको आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, कुछ समय के बाद जो है ये अपने सिंपल कंपोनेंट में टूट जाता है। इसके अलावा आप जो हैं फ्रूट जूस की बहुत सारी बॉटल में आप देखते हैं कि फ्रूट जूस भर करके दिया जाता है। तो कहता है कि नंबर 2, टू प्रिपेयर फ्रूट जूस कप एंड बॉटल, फ्रूट जूस कप एंड बॉटल, इसको बहुत दिन तक प्रिजर्व करते हैं फ्रूट जूस को। तो प्लास्टिक का यूज करने के बजाय हम पॉलीलैक्टिक एसिड पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेबल जूस भी हम प्रिजर्व करते हैं, उसको भी हम कंटेन करते हैं लैक्टिक एसिड की बॉटल में। वाटर बॉटल जैसे इस्तेमाल किया है तो हम प्लास्टिक की बॉटल जो है उसके इस्तेमाल करने के बजाय वी कैन यूज लैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल जो है हम इसका भी उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग जो आजकल हो रहा है मेडिसिन में हो रहा है, सर्जिकल गुड्स तमाम बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप ये जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं इस्तेमाल करते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं तो उनको जोड़ने के लिए स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं या प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, रॉड का इस्तेमाल करते हैं, तो पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो अप्लायंसेज हैं यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स इन सर्जिकल इक्विपमेंट्स, एज ए सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इसके अलावा आप ये जानते हैं टाका, टाका लगता है जिसको कि कहते हैं स्ट्रेचिंग थ्रेड, स्ट्रेचिंग थ्रेड के रूप में भी हम पॉलीलैक्टिक एसिड का यूज करते हैं। और ये बहुत सारे लोगों को ये सुना होगा कि साहब टाका लगाया, जैसे इंटरनल एक स्ट्रेचिंग होती है पेट वगैरह के ऑपरेशन में, तो एक इंटरनल स्ट्रेचिंग करते हैं, एक एक्सटर्नल करते हैं। इंटरनल स्ट्रेचिंग को कहीं से निकालते नहीं है, उसी के अंदर रहता है, उसका बायोडिग्रेडेशन होने के साथ साथ वो खत्म हो जाता है, जिसको लोग कहते हैं टाका गल गया। तो गल जाने का मतलब क्या है, वो सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। तो इन दिस वे वी कैन यूज पॉलीलैक्टिक एसिड which is biodegradable in different applications. So this polylactic acid, these are the applications of the polylactic acid. Now come to the another biodegradable polymer, that is known as PHB, polyhydroxybutyrate. Just see, these are the polymers which are prepared by condensation, polymerization. So just see this PHB, polyhydroxybutyrate. So here this polymer can be prepared by the polymerization, condensation, polymerization, I see. Condensation, polymerization of 3-hydroxybutanoic acid. 3-hydroxybutanoic acid. Just see, this is the butanoic acid. OH, C, H3, H, C, H,
2 1 2 3 COOH. This is the 1 2 3 OH. Therefore, it is said as 3-hydroxy between 1 2 3 4 carbon butane OIC acid COOH group है between 3-hydroxy butanoic acid 3-hydroxy butanoic acid. So this 3-hydroxy butanoic acid is polymerization, condensation polymerization. So we can write here polymerization. So here polymerization, there are two sides of the polymerization. दो जगहों से ये polymerization है. जैसे OH है, इसका H दूसरे मॉलिक्यूल के OH से मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा. तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की ये पहचान है कि जब दो मोनोमर मॉलिक्यूल कंडेंस होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, वाटर निकले, अमोनिया निकले, NH3 या अल्कोहल प्रोडक्ट बने. तो हमेशा कंडेंसेशन, यहाँ पर इस कंडेंसेशन में वाटर बाहर निकलता है, हम लिख देते हैं -H2, पानी निकलता है. So this is the condensation polymerization. So what product we shall get? We shall get OCH, CH3, CH2, C double bond O like this. This is the polyhydroxy butanoic acid. Polyhydroxy butanoic acid. So polyhydroxy butanoic acid is prepared by the 3-hydroxy butanoic acid. It is biodegradable. So what are the applications? इनका हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो इनके उपयोग में हम देखिए कहाँ करते हैं उपयोग इनका. तो applications, बायोडिग्रेडेबल के नाते इसका हम प्रयोग करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर कि इसकी बहुत ही आवश्यकता है. जैसे आप फूड पैकिंग के लिए तमाम जो है फॉयल का इस्तेमाल करते हैं, तो फूड प्रोडक्ट को पैक करने के लिए इसका जो है हम इस्तेमाल करते हैं. ये इसका PHB का. तो नंबर 1 फॉर फूड पैकेजिंग, और फूड पैकेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं. तो जो हम लपेट देते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे लोग गलत काम करते थे कि पेपर में लपेट देते हैं रोटी वगैरह, नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो पेपर में इंक यूज की जाती है वह टॉक्सिक है. रोटी आप गरम उसके अंदर लपेट देते हैं तो गर्मी से वो जो उसका इंक है वो रोटियों पर लग जाता है और फिर आप रोटी खाते हैं, आपको पता नहीं चलता है. लेकिन आप टॉक्सिक मटेरियल आप अपने अंदर ले लेते हैं, नहीं करना चाहिए. इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं और
वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, PHB है, माने पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। एग्रीकल्चर में इस भी इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, मल्चिंग। मल्चिंग का माने है, लोग कहते हैं गांव के अंदर जो खेती करते हैं, कहते हैं कि साहब प्लास्टिक का शीट बिछा दीजिए। ठीक है, उनका ये कॉमन है, पॉलीथीन डाल डाल दिया। पॉलीथीन है नहीं, वो तो है PHB, बहुत पतली सी आती है, उसको आप लगा देते हैं जमीन के ऊपर, तो घास वगैरह जो निकालने में एक्स्ट्रा लेबर का जरूरत पड़ती है, वह लेबर आपका बच जाता है। आप लगा देंगे, इसके बाद जगह जगह जहाँ भी आपको प्लांट डालना है, जैसे कि सब्जी वगैरह उगाते हैं, गोभी का पौधा है या टमाटर का पौधा है या मिर्च का पौधा है, तो आप खेत में किसान इसका मल्च कर देते हैं। जो पहले पुराने जमाने के अंदर मल्चिंग का काम जो है घास फूस से कर देते थे, पुआल से करते थे, ताकि घास न निकले, केवल हमारा पौधा ही रहे। तो आजकल हम यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, लाइक PHB। तो वी कैन यूज इट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं फॉर मल्चिंग। फॉर मल्चिंग पर्पज। तो मल्चिंग के लिए हम करते हैं, मल्चिंग शीट में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं, उसका वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं। जैसे आप लीजिए कैप्सूल, तो जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर दवा भरते हैं और बंद कर देते हैं, तो आप उसको खाते हैं, तो वो कैप्सूल जो है, ऊपर का जो प्लास्टिक आप कहते हो खोल कोट, वो बायोडिग्रेडेबल है, पेट के अंदर जाता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है और कोई नुकसान हमारे अंदर नहीं करता। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं तीसरा, टू प्रिपेयर कैप्सूल ड्रग डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी। जैसे कि आप कोई भी कड़वी दवा खाते हैं, सीधे अगर आप खाते हैं तो आपको तीखा लगता है, तो आप नहीं खा पाते हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये जो है PHB जो पॉलीमर है, इसका कैप्सूल बनाते हैं, उसमें ड्रग भरते हैं और ड्रग भर करके जो है हम उसका यूज कर सकते हैं। सर्जिकल गुड्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सर्जिकल इम्प्लांट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम यूज करके उसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, इम्प्लांट्स। तो टू प्रिपेयर इम्प्लांट्स, आप अभी हमने डिस्कस किया कि घाव जैसे कट गया, आपका स्किन कट गई, गहरी घाव हो गई, तो उसको स्टिचिंग करते हैं, टाका लगाते हैं। तो स्टिचिंग में भी इसका हम उपयोग करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं
T to prepare stretching thread. स्ट्रेचिंग थ्रेड। स्ट्रेचिंग थ्रेड हम बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऑर्थोपेडिक में सर्जरी होती है, मल्टीपल अगर फ्रैक्चर है तो उसको हड्डियों को जल्दी से जोड़ना, इकट्ठा करना, उसके लिए हम स्क्रू जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लेट इस्तेमाल करते हैं, वो सभी जो है हम PHB का बना सकते हैं। शैम्पू बॉटल बहुत ये कॉमन यूज में आता है। आप देखते हैं कि शैम्पू बॉटल जो है वो जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं वो बड़ा प्रेफरेबली उसको कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, फिर उसका रिसाइकिल बड़े आराम से किया जा सकता है, तो उसको भी वो इस्तेमाल उसको कलेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर शैम्पू बॉटल। शैम्पू बॉटल बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक हो गया। इसके बाद एक दूसरा जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसका हम बताते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है। वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है आपका PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी बैलेरेट। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी बैलेरेट। So this is the PHBV. So how this polymer can be prepared? It is simply prepared by the co-polymerization. Just अभी तक मैंने जो बताया वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एक ही मोनोमर है, कंडेंस हो जा रहा है। अब इसमें भिन्न भिन्न मोनोमर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हम भिन्न भिन्न मोनोमर का इस्तेमाल करते हैं तो वो पॉलीमराइजेशन, चाहे एडिशन पॉलीमराइजेशन हो या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इस पॉलीमराइजेशन का नाम हम कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन। तो कोपॉलीमराइजेशन कैसे होता है? ये होता है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो इसका पॉलीमर किसमें बनाते हैं? कहता है कि 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4, इसका माने 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड CHCl
2H5 CH2 C double bond O OH 1 2 3 2 5 pentane. So it is the 3 hydroxy pentanoic acid. Pentanoic acid. 3 hydroxy pentanoic acid. अब इसके अंदर क्या है कि ये इसके साथ अगर आपका OH ये कंबाइन करें तो पानी निकल जाएगा। तो यू विल गेट ए पॉलीमर लाइक दिस। ओ यहाँ भी ऐसे ही होगा रिएक्शन। तो OCH CH3 CH2 C double bond O, this O, CH, C2H5, CH2, C double bond O, you can say like this. Yeah. This is your PHBP. PHBP. This is the PHBP. ये पॉलीमर जो बना है आपका कैसे बना? बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड. So in this way, this polymer is also biodegradable. तो बायोडिग्रेडेबल में इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम उसी तरह से करते हैं जैसे कि आप फूड पैकेजिंग के लिए फिल्म इस्तेमाल करते हो। तो दिस पॉलीमर कैन बी यूज फॉर फूड पैकेजिंग एंड दिस कैन बी यूज टू प्रिपेयर कैप्सूल फॉर इनक्लोजिंग ड्रग। दवा को बंद करने के लिए अंदर से बाहर दवा जो है हम नहीं रखेंगे, इसके अंदर दवा का पाउडर बनाते हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि कई एक सिंपल तरीके से हमने आपको कई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का नाम बताया। कुछ नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताया और कुछ सिंथेटिक। तो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल का उपयोग हम बाहर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे गुण नहीं है जिनको कि हम बाहर इस्तेमाल कर सकें। जैसे प्रोटीन का हम उन स्ट्रेचिंग थ्रेड नहीं बना सकते हैं, प्लेट नहीं बना सकते हैं फॉर सर्जिकल पर्पजेज, स्क्रू नहीं बना सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल नहीं बना सकते हैं। तो इनका बड़ा उपयोग नहीं है हमारे लाइफ में। वो नेचुरल जो चीज़ें हम खाते हैं और उसका बायोडिग्रेडेशन होता है। जैसे सिल्क है, सिल्क वो भी नेचुरल बायोडिग्रेडेबल है, स्टार्च है, सिल्क है और सेल्यूलोज है, छाल छिलका जिसे आप कहते हैं वो भी है। प्रोटीन हम खाते हैं वो भी है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ऑल दी आर द natural biodegradable polymer and come to the synthetic biodegradable polymer, polylactic acid है, PHB हो गया, PHB भी हो गया और भी बहुत से जैसे नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये भी नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नायलॉन 6 नहीं की हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा नायलॉन है जो बायोडिग्रेडेबल है जिसका कि हम उपयोग कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। अब इसके बाद जो बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ द बायोडिग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ बायोडिग्रेडेशन। तो बायोडिग्रेडेशन का सिद्धांत क्या है? तो देखिए बायोडिग्रेडेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है there are
two principle two principles of biodegradation. Two principles of biodegradation. नंबर एक, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन। दूसरा है नॉन एरोबिक बायोडिग्रेडेशन। एरोबिक माने ऐसा है कि ऐसा बायोडिग्रेडेशन जो कि हवा की उपस्थिति में ही बायोडिग्रेडेशन होता है। दूसरा जो है वो नॉन एरोबिक माने एनाएरोबिक भी कहते हैं इसको। नॉन की बजाय हम लिखते हैं एनाएरोबिक माने इन एब्सेंस ऑफ एयर। दोनों में फर्क क्या है? ये जो बायोडिग्रेडेशन है ये बैक्टीरिया और फंजाई के उपस्थिति में होता है, मोस्टली बैक्टीरिया की उपस्थिति में होता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, प्रोटीन वगैरह है, इसका बायोडिग्रेडेशन होता है। दोनों में फर्क कैसे हम करते हैं? ये जो बायोडिग्रेडेशन होता है एरोबिक, इसमें जो मुख्य प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ये प्राप्त होती है। जैसे सपोज करिए ये पॉलीमर है, पॉलीमर प्लस O2, ये O2 मीन्स एयर। अब इसके साथ जो है आपको CO2 बनेगा, H2O बनेगा और प्लस बायोमास बनेगा, बायोमास। ये आपका जो है एरोबिक हुआ, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन। लेकिन एनाएरोबिक में क्या होगा? यहाँ पर पॉलीमर होगा और प्लस केवल पॉलीमर बैक्टीरिया और फंजाई, you will get CO2 plus methane. This is the very important, मीथेन। जैसे कि हम गोबर गैस बनाते हैं तो गोबर गैस में क्या है? ये एनारोबिक है। गोबर गैस में क्या है? एनारोबिक है। तो गोबर गैस में जो गैस बनती है वो मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 26 से 30% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और करीब 60% मीथेन गैस बनती है। पानी भी बनता है और बायोमास भी बनता है। तो CO2 प्लस अमोनिया, दिस इज द मीथेन और प्लस H2O और प्लस बायोमास। तो इन दिस वे वेरी सिंपल मैकेनिज्म, और ये भिन्न जगहों पर होता है। बहुत सारी टाइप की बैक्टीरिया होती हैं और फंजाई होती हैं जिनके द्वारा बड़े जो पॉलीमेरिक चेन होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो जिसको हम मित्र बैक्टीरिया भी कहते हैं। बैक्टीरिया जो है हार्मफुल भी होते हैं, जो कि सड़ा देते हैं। तो सड़ाने का अलग तरीका है, सड़ता तभी है जबकि उसके अंदर एयर होगा। नॉन एरोबिक में सड़ना होता, पेट के अंदर हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है बैक्टीरिया के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा भी होता है। यहाँ पर आप बैक्टीरिया, फंजाई और एंजाइम्स तो एंजाइम्स के द्वारा जो है डाइजेशन होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस बनती है। जैसा कि हमने उदाहरण बताया कि गोबर गैस प्लांट के अंदर जो गोबर है पानी के साथ मिला करके स्लरी बनाते हैं और स्लरी बनती है धीरे धीरे बैक्टीरिया के द्वारा। वो जो गोबर के अंदर सेल्यूलोज है, गोबर के अंदर प्रोटीन है, जो
जानवर खाते हैं, फिर भी वो अनडाइजेस्टेड बाहर निकलता है एज ए डंग, तो उसको जो है हम चेंज कराते हैं केमिकल तरीके से, जिसको कि बायोडिग्रेडेशन करते हैं, और हमको मीथेन गैस मिलती है। जो मिक्सचर है उसमें 1-2% नाइट्रोजन भी होता है, H2S भी होता है गोबर गैस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा है, करीब 25 से 30% हो जाएगी। मीथेन गैस ज़्यादा प्राप्त होती है, CH4 यही मीथेन गैस जलती है, जो कि हम अपने जलाने के काम में लाते हैं। तो इस प्रकार से, और H2S गैस भी बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोडिग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ द बायोडिग्रेडेशन and the different type of the biodegradable polymer. Thank you. Thank you.